Hello dear students, this is Professor Kavita Brahmankar and I welcomes you to the online practical series of subject Computer Networking and Data Communication. Today we are going to perform practical number 12, that is you have to assign IP address to the PC connected to the internet. The learning outcomes of these practicals are: after watching this video, you will be able to assign IP address to the PC connected to the internet by static IP address method and by dynamic IP address method also. And you will be able to resolve conflict error in networking. Course outcome that will get achieved is CO2, that is you will be able to use relevant network model for the specified data communication system, and PO5, that is you will be able to configure the network component and assign IP address. PO1, PO4, PO6 and PO7, these POs will get achieved. Then what is mean by internet protocol? And internet protocol means IP address is a unique number assigned to every device on a TCP/IP network. So हमारे नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस अवेलेबल है, जितने भी कंप्यूटर्स अवेलेबल है, उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो हम प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड आईपी एड्रेस. फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे एक क्लास में 60 स्टूडेंट होते हैं, तो हर एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनको रोल नंबर असाइन करते हैं. सेम उसी तरीके से नेटवर्क समझो एक क्लास है और नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स है वो स्टूडेंट्स है, तो उस कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं. सो जस्ट लाइक योर फिजिकल होम एड्रेस lets people know where to send your birthday card, IP addresses identify computers and devices and lets them communicate with each other. जैसे हमको फिजिकली किसी का बर्थडे कार्ड भेजना है तो हम उसके घर के एड्रेस पे बर्थडे कार्ड भेजते हैं, वैसे ही मीन्स हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू बर्थडे कार्ड. तो वैसे ही हमको कंप्यूटर्स के साथ अगर कम्युनिकेशन करना है तो इंस्टेड ऑफ होम एड्रेस हम उसका आईपी एड्रेस यूज करेंगे कम्युनिकेशन के लिए. देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ आईपी एड्रेसेस इन कॉमन यूज, दैट इज IPv4 and IPv6, that is Internet Protocol version 4 and Internet Protocol version 6. Now, what is difference between these two types? So, IPv4 has hexadecimal numbers separated by periods. Periods means dots. So, this is the example for IPv4 IP address 192.168.0.1. So this dot indicates that it is IPv4 IP address, while IPv6 has 6 hexadecimal numbers separated by colons such as 2001:0db8:8583 likewise. और यहाँ पे ऐसे 6 हेक्साडेसिमल नंबर्स यूज होने वाले हैं और उनको सेपरेट करने के लिए हम कोलन्स यूज करने वाले हैं. So this is the difference between IPv4 and IPv6. Then there are 2 types of IP addresses. जो भी हम IP addresses असाइन करते हैं वो हम 2 तरीके से असाइन कर सकते हैं. पहला है static IP address and दूसरा है dynamic IP address. So let us see what is static IP address. Static IP address is simply an address that doesn't change. Once your device is assigned a static IP address, that number typically stays the same until your network architecture changes. Means अगर हम एक बार किसी नेटवर्क में किसी डिवाइस को IP एड्रेस अगर हम असाइन करते हैं और वो असाइन किया हुआ IP एड्रेस हमेशा के लिए वहां पे परसिस्ट करता है, हमेशा के लिए उस IP एड्रेस का यूज करके अगर वो नेटवर्क में कनेक्ट होता है, that is called static IP address. ये एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होगा. ये चेंज कब होगा, जब हम नेटवर्क का आर्किटेक्चर चेंज करते हैं, तभी ये स्टैटिक IP एड्रेस चेंज हो सकता है. देन नेक्स्ट इज डायनेमिक IP एड्रेस. This
addresses are subject to change, sometimes at a moment's notice. Dynamic addresses are assigned as needed by Dynamic Host Configuration Protocol, that is DHCP server. डायनामिक आईपी एड्रेस ऐसा है कि वो हमेशा चेंज होगा टाइम टू टाइम. थोड़े टाइम के लिए एक एड्रेस रहेगा, दूसरे टाइम के लिए अगर हम सेम डिवाइस से लॉग इन करते हैं या कनेक्ट होते हैं तो वो दूसरा आईपी एड्रेस असाइन होगा सेम डिवाइस के लिए. इसीलिए इसको डायनामिक आईपी एड्रेस बोला जाता है. और ये डायनामिक असाइनिंग का काम कौन करता है? DHCP सर्वर, दैट इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर. सो अगर हमको इसका एक एग्जांपल लेना है, सो फॉर एग्जांपल a college lab computers has a static IP address, but each individual device connected by Wi-Fi like students mobile would have a dynamic IP address. हमारे लैब में कॉलेज के जितने भी लैब्स हैं, उन लैब में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उनको हमने स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है. लेकिन अगर कोई स्टूडेंट आता है, समझो एक लैब में 3-4 स्टूडेंट है, उनको अपने मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट करना है. सो उनको उनके मोबाइल को जो नेटवर्क मिलने वाला है, आईपी एड्रेस मिलने वाला है, वो डायनामिक आईपी एड्रेस रहने वाला है. क्योंकि अभी 3-4 स्टूडेंट आए हैं, उनको हमने DHCP सर्वर ने कुछ डायनामिक आईपी एड्रेस असाइन कर दिए. थोड़ी देर के बाद वो स्टूडेंट दूसरे जगह पे चले गए और नेटवर्क के बाहर चले गए और दूसरे 3-4 स्टूडेंट फिर से आ गए, है ना. तो इस तरीके से उनको डिफरेंट असाइन आईपी एड्रेस बार बार असाइन होने वाला है. So this is called dynamic IP address. Now let's move to the performance. IP address सेट करने के लिए सबसे पहले हमको स्टार्ट मेनू में जाना पड़ेगा, देन कंट्रोल पैनल. सो मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाती हूँ, कंट्रोल पैनल, देन क्लिक ऑन नेटवर्क एंड इंटरनेट. यहाँ पे गए हम, देन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, यहाँ पे क्लिक करना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे. नेक्स्ट इज क्लिक ऑन चेंज अडेप्टर सेटिंग्स, देन राइट क्लिक ऑन लोकल एरिया कनेक्शन एंड देन क्लिक प्रॉपर्टी. सो दिस इज लोकल इथरनेट NIT Poly's local area connection for my computer. So go to properties, then click on Internet Protocol version 4, then go to properties. Then select IPv4 and properties, ये हमने किया है. Use the following IP address, यहाँ हम static IP address लेने वाले हैं. So we will type IP address, that is static है इसलिए यहाँ पे हम डॉट यूज करेंगे. 192.168.1.10. ये हो गया हमारा आईपी एड्रेस. देन सबनेट मास्क, ये नेटवर्क में जितने भी पीसीज है उनके लिए सेम रहने वाला है. एंड डिफॉल्ट गेटवे 192, ये भी सेम रहने वाला है बिकॉज एक ही गेटवे यूज करेंगे हम. 168.1.1. सो स्टैटिक आईपी एड्रेस है इसलिए हर जगह पे हमने डॉट यूज किया है. देन क्लिक ओके. सो इस तरह से हमने हमारा स्टैटिक आईपी एड्रेस सेट किया है. नाउ हाउ टू सेट डायनामिक आईपी एड्रेस. सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो. गो टू स्टार्ट मेनू, गो टू कंट्रोल पैनल, देन go to network and sharing center, then go to change adapter settings and right click on local area connection. same procedure हमको follow करना है. properties बटन पे जाना है, then इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 या फिर 4 जो भी अवेलेबल है वो देखना है. तो हमारे इसमें IPv4 अवेलेबल था या IPv6 भी ले सकते हैं आप. अगर मैंने यहाँ पे 6 किया है, देन गो टू प्रॉपर्टीज, देन
enable DHCP, obtain IP address automatically, obtain an IPv6 एड्रेस ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये DHCP सर्वर के लिए है कि वो ऑटोमेटिकली ऑब्टेन करेगा। हमने स्टैटिक के टाइम पे यहाँ पे यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस ये किया था क्योंकि हमने मैन्युअली यहाँ पे टाइप किया था। सो ऑब्टेन IPv6 एड्रेस ऑटोमेटिकली, ऐसा अगर हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। सो मैं अभी नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हूँ, अगर मैं नेटवर्क में कनेक्ट हो जाती हूँ तो ओके, यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन नहीं है लेकिन अगर हम ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस आ जाएगा और हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम डायनामिक एंड स्टैटिक वे से आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।